No, the question is not visible. Okay, written the numerical. Have you written the numerical? Yes, sir. Okay. I will see how to solve this. So what is the numerical? A tensile test is made on a 0.2 text fiber. Right. We are having a fiber where we have given the tensile test. Right. That fiber has a linear density of 0.2 text with a gauge length of 100 millimeter. So whatever testing we did, where we have tested it by having a gauge length of 100 mm. I hope you people are knowing what is gauge length. Can anybody able to answer me what is gauge length? What is gauge length? What is gauge length? Sir, major elongation during tensile strength. No, Sir, linked where we measure for test. means Sir, when we test a fiber, the uh, length we get for test is called gauge length. okay. So you are actually correct, but you are unable to express. Okay, I will tell you. So whatever Saurabh is told, that is right. Gauge length is the length what we want to test. How we used to test the tensile property on the instrument, we are having two jaws, right? You might have heard this word jaw, right? We are having two jaws.
One is the top jaw, other is the bottom jaw, right? We used to place our textile material. Your textile material means fiber or yarn or fabric. Here in this case, we are having fiber, say for example, right? And we will apply the load from the bottom side. We'll apply the load from the bottom side. So because of the application of load, what will happen? And also we used to move this jaw. We used to move this jaw, bottom jaw. Therefore, actually we are applying the load. The tension will get generated into the specimen. So that is the concept. Actually, we don't need to go into that. Deep in the principle. But just overview I am telling. When we apply the load, tension will get generated into the material, and one point will come that tension is unable to withstand by the textile material, and your textile material will get break. In order to do this, initially we used to place our material in between the two jaws, right? So there is a particular length in between the two jaws, right? There is a length between the two jaws. There is a particular distance, we can say, we used to keep in between the two jaws. So this distance is generally called as gauge length. The distance between the two jaws is called as gauge length. It is the definition of gauge length. The distance between the two jaws is called as gauge length. So you should know the concept. Don't forget all these things. Okay. A tensile test is made on a 0.2 fiber with a gauge length of 100 millimeter. So gauge length is how much? 100 millimeter. So 10 centimeter. From the curve produced by the recording device on the testing instrument. So testing instrument, what it will does, by the testing of that fiber, it will produce the curve, tensile curve. And your instrument will give the results, right? Some data we can able to extract from the test, and that data is given here in the table. The data is given here in the table. What is the data we get? Extension, how much extension you got, because we are applying the load. Because of the application of load, there will be extension in the material. So what will be the extension in the material? That will calculate, that will read, and particularly for that particular extension, what will be the load in millinewton, that we record, right? What will be the load in millinewton, that will record. So for extension of 1 mm, for the extension of 1 mm, the load will be 20 millinewton. Likewise, they have recorded the length values and extension values and load values, right? So when specimen gets break, at that time the extension was 12 mm and load was 65 millinewton. Load was 65 millinewton. So for that particular fiber, it means that at 65 millinewton, your fibers will break, whereas extension will be 12 mm. Now, based on this data, what you have to do first? First, you have to draw the load elongation curve. That is very simple. Both the data you are having, you can able to calculate the. You can able to draw the load elongation curve. Once you draw the load elongation curve, you have to transform it into the stress strain curve. Because in textiles, we generally use the word stress and strain. Why we use this word stress and strain, that we have studied already in the textile testing. So from the load elongation curve, you have to convert or transform this curve into stress strain. And then you have to calculate the initial modulus and approximate work of rupture. Approximate work of rupture. So we'll solve this numerical step by step so that you can able to understand. So first of all, you have to draw the load elongation. This is very simple task. Everyone know how to plot a graph. There is nothing new. That is very common thing. So to plot a load elongation curve, what I will do,
I will take the help of axis, right? So there will be a x-axis and y-axis, right? There will be a x-axis and y-axis. The interaction point is 0, 0 coordinates. Okay. Now on x-axis, you have to take the extension. So x-axis will show extension values and y-axis will show the load values. Y-axis will show the load values. आपको मेरे साथ साथ ये ड्रॉ करना है क्योंकि मैं अभी तो देख नहीं सकता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. तो मेरे साथ इसको ड्रॉ करो. नहीं करोगे तो आपको अगर एग्जाम आपका थ्योरी हो जाता है तो आपको दिक्कत जाएगा ये निकालने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 13 मार्क के लिए आता है. 11 मार्क, 13 मार्क, पूरा मार्क चला जाएगा आपका अगर इसका और क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो. Okay, so on x-axis you will get extension values, on y-axis you will have load values. Load in millinewton and extension is in millimeter. Extension is in millimeter. Load is in millinewton. So I will take the values like, say for example 1, 2, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm. आपको सिंपल जाएगा क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर है, तो आप सीधा सीधा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू mm डाल के निकाल सकते हो. सीधा सीधा लिख सकते हो आप वहाँ पे 8, then 9, 10, 11, 12. सो 12 तक आपका एक्सटेंशन है तो इसलिए मैंने 12 तक ही लिया. अब वाई एक्सिस में क्या लेना है अपने को? लोड लेना है मिलीन्यूटन में. तो लोड यहाँ पे कितने तक है? यहाँ पे 65 मिलीन्यूटन तक है लोड 20 से. तो हम 10 से 10 का गैप रख के कर सकते हैं. 10 का गैप मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 10 मिलीन्यूटन रेशियो हम रख सकते हैं इसमें. तो वैसा रख के 7 वैल्यूज लगेंगे. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5. म्यूट करो जिसने भी चालू किया है माइक. 10, 10 मिलीन्यूटन, 20 मिलीन्यूटन, 30 मिलीन्यूटन, 40 मिलीन्यूटन, 50 मिलीन्यूटन, 60 and 70 millimeter. Okay, so that you have plotted now. Now you have to mark the points in the graph. For 1 mm extension, how much load you got? You got the load of 20. So I will mark the point here. आप खाली पॉइंट मार्क करो, ये सर्कल मत करो. आपको दिखने के लिए मैं सर्कल कर रहा हूँ.
Then for 2 mm it will be 32.5. 2 कहाँ पे है, 32.5 कहाँ पे है? मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, आप एग्जैक्ट ले लेना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है आपका हर एक mm मतलब 1 मिलीन्यूटन हो रहा है। आपने कैसे लिया है स्केल? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीन्यूटन लिया है ना सबने, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कैसे लिया है मुझे बताओ। 1 centimeter is equal to 10 millinewton. हाँ, तो आपका 1 mm मतलब 1 मिलीन्यूटन हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप निकालो 32.5। फिर 3 mm को 40 मिलीन्यूटन लोड आ रहा है, और 3 इट विल बी 40। For 4 it will be 45. Five it will be 48. Then for 6 it will be 50.5. For 6 how much it is? 50.5. Then for 7 it will be 52.5. For 8 it will be 54. For 9 it will be 56. For 10 it will be 59. For 11 mm extension it will be 62. Load will be 62. And for 12 mm it will be 65. That will be the breaking point. Likewise. That is fine. Now you can draw these points, all the points what you are marked. So we'll draw it. आप अच्छी तरीके से ड्रॉ करो स्मूथली, जैसे आपको पढ़ाया गया है स्कूल में। जब आप छोटे थे स्कूल में आपको पढ़ाया गया है कि ग्राफ कैसे निकालना है, वैसे मार्क करो। मैंने मेरे हिसाब से मार्क कर दिया। यहाँ पे कर्सर मुझे हैंडल नहीं करना आता, बहुत डिफिकल्ट जाता है कर्सर हैंडल करना। आप अच्छी तरीके से स्केल है आपके पास, बराबर मार्क करो। एक्चुअली वो फ्री हैंड चाहिए, स्केल से मत करो, फ्री हैंड से ही करना पड़ता है वो। सबने मार्क किया? Yes, sir. ओके। अब ये आपका एक पार्ट हो गया इसमें से, एक पार्ट मतलब एक पॉइंट हो गया इसमें से। लोड इलांगेशन करो, आपने निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफॉर्म इट इनटू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।
Now you have to transform the same graph into stress strain. अब मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए अलग से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसी ग्राफ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए, अलग से बनने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, व्हाट इज स्ट्रेस? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस? टेक्सटाइल टेस्टिंग याद करो। Load upon linear density. Load by density. Load upon linear density. Stress is what? Load upon linear density. लोड है आपके पास, लोड दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? Yeah. लीनियर डेंसिटी दिया है क्या? लीनियर डेंसिटी, Yes. लीनियर डेंसिटी भी दिया है। कितना है लीनियर डेंसिटी? हाउ मच इट इज? 0.26. 0.26. 0.2 इज द लीनियर डेंसिटी। सो लोड अपॉन लीनियर डेंसिटी। तो हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है स्ट्रेस में। तो लोड वैल्यूज अपने पास है, डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी करो, डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी करो। तो करते हैं यहाँ पे लोड कितना है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के लिए 10 है, 10 लोड है, डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी डिवाइडेड बाय 0.2, कितना था आंसर? कितना था? अरे इसका आंसर बताओ ना, कितना आता है? 10/0.2 कितना आता है? अरे 50। इतना टाइम लगता है क्या? 0.2 ये बताने के लिए इतना टाइम लगता है? ये क्या है? 10, ये 0.2 का ये इंटू 10, तो ये आ गया इंटू 10, 10⁻1 है ना, ये ऊपर गया तो 10⁻1 हो गया, डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 50। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? लोग है आप भी यार। बाकी के बच्चे राह देखते बैठते हैं, खाली गिने चुने। इनको टेक्सटाइल मैथमेटिक्स क्या खाली 2-4 बच्चों के लिए दिया है क्या? इज इट फॉर ओनली 2-3 स्टूडेंट? इज इट फॉर ओनली ऋषिकेश बोबड़े, सौरभ कुंडले, सुमित सिंह और 1-2 बच्चे हैं, उनके लिए है? बाकी बच्चे कब बात करेंगे? मैं क्या पागल थोड़े ना हूँ, आपको हर बार पूछता हूँ, 4 बार क्वेश्चन पूछना पड़ता है आप लोगों को। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, आया क्या, आया क्या, आंसर आया क्या, कितना है, कितना है, कितना है? आउट ऑफ 33 बच्चे के सबके पास इंटरनेट स्लो है क्या? सिंपल सिंपल चीजें आपको बहुत, 1-1 घंटा ऐसे एग्जाम्पल को निकालूंगा तो बहुत है फिर टेक्सटाइल मैथमेटिक्स। बताओ ये 20 का लोड बताओ, 20 का लोड बताओ, स्ट्रेस बताओ, इसको स्ट्रेस बताओ। सारी चीजें हुए आपको, फिर भी इतना टाइम लग रहा है मेरे को। इसको स्ट्रेस कितना आता है? So 100. हाँ, इसको कितना आता है 30 को? 150. ऐसे बताओ ना, क्या है? हर बार मुझे ही बोलना पड़ता है, बोलने के बाद फिर आप जग जाते हो, क्या है इसको मतलब ही नहीं कुछ। फिर 40 का कितना आता है? 200. 50 को? 250. इसका मतलब 50 के रेंज से जा रहा है आगे, क्योंकि वो इक्वल, उससे हम लोड बढ़ा रहे हैं, तो ये भी इक्वल ही जाएगा। 300 एंड 350, ओके। तो ये हो गया स्ट्रेस। ये क्या हो गया अपना? स्ट्रेस, स्ट्रेस, ओके। वैसे आपको स्ट्रेन निकालना है। व्हाट इज स्ट्रेन? फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है?
किसी को आता है क्या? व्हाट इज स्ट्रेन? चलो मैं बता देता हूँ। स्ट्रेन मतलब क्या रहता है? एक्सटेंशन टू द इनिशियल लेंथ रहता है। स्ट्रेन क्या रहता है? एक्सटेंशन टू द इनिशियल लेंथ रहता है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन वैल्यूज दिए है अपने को, इनिशियल लेंथ भी दिया है। इनिशियल लेंथ मतलब क्या है? जिस लेंथ को आप टेस्ट कर रहे हो, गेज लेंथ। इनका मतलब क्या है? गेज लेंथ के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो अपना इनिशियल लेंथ कितना है? 100 mm है। इनिशियल लेंथ कितना है? 100 mm है। और एक्सटेंशन mm में ही दिया है, तो कन्वर्जन की जरूरत है नहीं, तो सीधा हम एक्सटेंशन बाय इनिशियल लेंथ ले सकते हैं। एक्सटेंशन बाय इनिशियल लेंथ हम ले सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेन वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला एक्सटेंशन लेते हैं, दैट इज 1 डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ कितना है? 100। ओके, तो कितना आता है आंसर इसका, बताओ मुझे। ये आपका हो जाएगा स्ट्रेन हो जाएगा कितना? 0.01. सो इट विल बी 0.01. Then for 2 extension, what will be the strain? इसका करो कैलकुलेट, कितना आता है? 0.02. 0.005. 0.02, not 00. 0.02. इसका 0.03. likewise you have to calculate it. 0.03, इसका आएगा 0.04, इसका आएगा 0.05, इसका 0.06, 0.07, like this you have to calculate, and I will write here for last 2. 11 का कितना आता है बताओ? 11 का 0.11. 0.11 आता है, और 12 का 0.12. कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज नॉर्मल कैलकुलेशन लॉजिक। कैलकुलेटर की जरूरत है नहीं यहाँ पे, सीधी सीधी बात है ये। ओके, तो यहाँ पे 0.12 तक जाता है स्ट्रेन। तो ये क्या हो गया आपका? स्ट्रेन। हो गया अपना स्ट्रेन। तो हमने सेकंड पॉइंट भी कवर कर लिया, स्ट्रेस को कन्वर्ट किया, स्ट्रेन को कन्वर्ट किया, वो वैल्यूज यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर पे लिखा। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, ग्राफ पे ही ऐसे ही वैल्यूज लिख देना है, और यहाँ पे स्ट्रेस लिखना है, ऐसे वैल्यूज यहाँ पे स्ट्रेन की लिखना है, यहाँ पे स्ट्रेन लिखना है। हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। क्योंकि खाली वैल्यू चेंज हुए, वो पॉइंट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये 1 है, ये 0.01 है। तो 0.01 के लिए वैल्यू क्या आ रहा है? 100 आ रहा है, मतलब यही पॉइंट है, 20 का ही पॉइंट है, तो ये पॉइंट नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये ग्राफ वैसे ही रहेगा आपका। और एक चीज हमने पढ़ा है टेक्सटाइल टेस्टिंग में, स्ट्रेस स्ट्रेन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कर्व चेंज होता नहीं। ये ऐसा सीधा सीधा हमने टेक्सटाइल टेस्टिंग में पढ़ा है। क्यों नहीं होता? इसके वजह से नहीं होता, क्योंकि वैल्यू सेम ही रहने वाले, खाली उसका यूनिट बदल गया। एक्सटेंशन की जगह पे स्ट्रेन हो गया, लोड की जगह पे स्ट्रेस हो गया, बस। तो ग्राफ विल बी सेम। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था उसमें? सब क्वेश्चन क्या था तीसरा? थोड़ा बताओ, क्योंकि मैं पीछे जाऊंगा तो डिस्कार्ड करना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें? इनिशियल मॉडुलस। ओके, इनिशियल मॉडुलस पूछा है। इनिशियल मॉडुलस मतलब क्या? मॉडुलस इज व्हाट इज मॉडुलस? स्ट्रेस टू द स्ट्रेन।
the ratio of stress to the strain, right? Yes. So generally, this property is important property, initial tensile modulus, because it shows the behavior of fiber, which indicates how much it can resist even for a small tensile forces. Even if we apply small tensile forces, how much is how is the behavior of that fiber towards the application of load for the initial phase, for the initial stage. It means what? How it can able to resist to the forces which are coming to it. Right? So this information we get from initial tensile modulus. Therefore, it is again a very important property. So in that reason, actually, particularly your material will follow the Hooke's law, where stress is directly proportional to strain. So initial tensile modulus we generally used to calculate by the ratio of stress by strain. By the ratio of stress by strain. So we can say that initial tensile modulus is equal to stress by strain. Then how to calculate this? That we have to see. What? That we have to see. How we can calculate? That we have already seen in textile testing. But again, I will recall for you people so that you can able to understand. So here we will try to calculate the stress and strain for the initial straight part of the curve, because you know how is the curve. How is the curve? The initial portion of the curve is straight, and then at particular point, at particular load and extension, your curve will start to bend. Your curve will start to bend, right? एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, वहां पे आपका कर्व क्या होने चालू हो जाएगा? बेंड होना चालू हो जाएगा, है ना? जैसे कि यहाँ से ही बेंड होना चालू हो गया, वो पॉइंट से ही बेंड होना चालू हो गया, यहाँ से बेंड हुआ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, तो देखो जहां से वो बेंड होना चालू हो जाता है वो पॉइंट मार्क करने का, तकरीबन यहाँ पे आता है वो पॉइंट, यहाँ से वो बेंड होना चालू हो गया। अब ये स्किल है आपका, आप किस तरीके से प्लॉट करते हो ग्राफ। गलती से प्लॉट में आपने थोड़ा सा गलती किया तो आंसर वेरी होने वाले हैं, ये ध्यान में रखो। इसमें स्किल की जरूरत है। आजकल तो टेस्टिंग मशीन से वही दे देते हैं, बट अगर मैन्युअली प्लॉट करने की जरूरत आ गई किसी दिन इंडस्ट्री में तो आपको आना चाहिए, इसे न्यूमेरिकल है। अदरवाइज आजकल तो मशीन पे इंस्ट्रॉन मशीन है और भी बहुत सारे मशीन है जहाँ पे आपको ये सब प्रिंट होके आता है, सब रिपोर्ट आपको कंप्यूटर ही दे देता है, तो इतना टेंशन देने की जरूरत है नहीं। बट कभी कभी आपको अगर मैन्युअली करना है, रिसर्च वर्क के लिए करना है, तो बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ेगा। तो यहाँ से बेंड होना चालू हो गया वो, तो इसको मैंने मार्क कर लिया। फिर वहां से हम क्या करेंगे, एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम इनिशियल पोर्शन का स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे चाहिए इनिशियल मॉड्यूलस। तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर मार्क करता हूं। तो ऐसे वो आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे खींच के लेके जाता हूं, क्यों खींच रहा हूं बाद में आपको समझ में आएगा। इसी पार्ट को मैंने एक्सटेंड कर दिया ऊपर। अब हम क्या करेंगे, एक स्लोप निकालेंगे, ऐसा स्लोप निकालेंगे कि वो ये जो इनिशियल स्ट्रेट पोर्शन है कर्व का, इनिशियल स्ट्रेट पोर्शन है कर्व का, उसको वो टच करके जाना चाहिए। मतलब टेंजेंट हम निकाल रहे हैं, इन शॉर्ट हम क्या निकाल रहे हैं, टेंजेंट निकाल रहे हैं। तो टेंजेंट कैसा चाहिए, ये जो स्ट्रेट पाथ है,
कर्व का स्ट्रेट पाथ, इसको टच करके जाना चाहिए। तो और ये टेंजेंट कहाँ से निकलना चाहिए? ओरिजिन से। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन चाहिए।
Am I audible? Yes, sir. पावर गया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। चलो अभी टाइम खत्म हो गया है, खाली मैं इनिशियल मॉड्यूलस आपको बता देता हूँ, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली लाइट जाने की वजह से वो जो भी मैं निकाल रहा था वो सेव हुआ नहीं। मैं यहाँ पे बुक का रेडीमेड ले लिया, बुक में से जो उनका ग्राफ आया है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि अपना 40 मिनट का पूरा मेहनत जाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सीधा सीधा ये बुक का ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि वी हैव टू प्लॉट ए टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट इनिशियल स्ट्रेट पाथ ऑफ द कर्व। सो ये हमने मार्क कर दिया, टेंजेंट मार्क कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये पार्ट हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था, सेट जाने से पहले ये पार्ट हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था। तो ये टेंजेंट कहाँ तक मार्क करना है? जहां तक ये इसको टच कर देता है, क्रॉस कर देता है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको क्या करना है फिर? यू हैव टू प्लॉट अ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, यू हैव टू प्लॉट अ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको देखना है, ये वैल्यू क्या रहेगा आपका? ये जो वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, वाई एक्सिस पे क्या है आपके पास? स्ट्रेस है। एंड एक्स एक्सिस पे क्या है? स्ट्रेन है। एन एक्सिस पे क्या है आपके पास? स्ट्रेन है, ठीक है। सपोज हम इसको नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बी। तो स्ट्रेस इज व्हाट? ओबी, एंड स्ट्रेन इज व्हाट? ओए, स्ट्रेन इज ओए। सो ओबी बाय ओए, ओबी बाय ओए। हाँ, ओबी इज व्हाट? स्ट्रेस कितना है? स्ट्रेस कितना है? तो यहाँ पे आप देखो आपके ग्राफ में कितना है। मैं बुक वैल्यू ले लेता हूँ अभी, यहाँ पे टाइम नहीं उतना। तो स्ट्रेस वैल्यू तकरीबन 225 आया है, आपका भी उतना ही आना चाहिए, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ये वैल्यू स्ट्रेस का कितना है, और स्ट्रेन का कितना है? स्ट्रेन का तो सीधा सीधा पॉइंट पे ही आया था, 0.02 है। आपका भी वही आना चाहिए, 0.02, 0.02। If you calculate this, you will get the answer. You will get the answer 11,250 मिली न्यूटन, क्योंकि लोड मिली न्यूटन में है स्ट्रेस, पर टेक्स, मिली न्यूटन पर टेक्स। So answer is 11,250 मिली न्यूटन पर टेक्स। हाँ, सर स्क्रीन विजिबल नहीं सर। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। नहीं है ना? हाँ बोलो, दिखा नहीं क्या ये? नहीं सर। अरे नहीं सर। पहले बताना चाहिए ना, टाइम गया ना अभी। आलं सर। फिर यहाँ पे स्ट्रेस टू द स्ट्रेन लेना है, मैं बता देता हूँ 2 मिनट में। स्ट्रेस टू द स्ट्रेन लेना है, इनिशियल मॉड्यूलस। स्ट्रेस कितना है अपना? यहाँ पे देखो, स्ट्रेस वैल्यू देखने का कितना है, ये तकरीबन 225 आता है। मैं इसको ओबी किया, एक्चुअली ये ठीक है चलता है, ओबी डिवाइड बाय ओए। स्ट्रेस इज ओबी एंड स्ट्रेन इज ओए, ठीक है। So OB is 225 and OA is how much? You can see it on x-axis. It will be 0.02, right? When you do this calculation, you will get the answer 11,250 milliNewton per tex.
11250 मिलीन्यूटन पर टेक्स. ओके. Likewise, you have to calculate this initial modulus. अब इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्योंकि उसको भी टाइम जाएगा. So let me take the attendance. Just hold. Absent कौन है आज? कौन absent है? चलो. ठीक है. We'll see in next lecture.